Hello student, today I am going to discuss part 7th of acids, bases and salts. In this part we are going to discuss about some important salts like baking soda, bleaching powder and plaster of Paris. First we will discuss about the baking soda. The common name is the baking soda. The chemical name is the sodium bicarbonate and chemical formula is NaHCO3. Next is the preparation of baking soda. It is manufactured by Solvay process or by soda ammonia process. Here the ammonia and carbon dioxide gases are passed through brine solution to form sodium hydrogen carbonate. Here in this chemical reaction you can see that this is the mixture of NaCl and water, and this mixture is known as brine. To this mixture, two gases, ammonia and carbon dioxide, are passed through this mixture of NaCl and water or brine. Then NaHCO3 or sodium bicarbonate is produced. Next is the properties of baking soda. First, it is a white crystalline substance. ये white crystal की फॉर्म में ये पाया जाता है. It is sparingly soluble in water. Sparingly means slightly. ये बहुत ज़्यादा आसानी से डिजोल्व नहीं होता है, so it is slightly or sparingly soluble in water. Aqueous solution of baking soda is slightly alkaline. अगर हम बेकिंग सोडा को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उसका नेचर बेसिक या अल्कलाइन होता है. ऑन हीटिंग इट गेट्स डिकम्पोज टू गिव soda ash. When we heat NaCO3, when it is heated, it is decomposed to produce soda ash or sodium carbonate. Carbon dioxide gas is produced and water is produced. So whenever we heat NaCO3, carbon dioxide gas is also produced. Here are some common uses of baking soda. It is commonly used as antacid to remove the acidity of the stomach. क्योंकि जो बेकिंग सोडा है ये इसका नेचर बेसिक होता है और हमारे पेट के अंदर अगर एसिडिटी होती है तो हम इस बेकिंग सोडा को अगर लें तो वहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड होता है और इस एसिडिटी की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है. तो ये बेकिंग सोडा एक एंटा एसिड की तरह यूज किया जाता है. इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर. बेकिंग पाउडर बनाने में इसका यूज होता है. It is used in the preparation of soda water and cold drinks. It is used in the fire extinguisher for instant production of carbon dioxide. क्योंकि इसको हीट करने से या इसको डिकम्पोज करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है तो इसको फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ किया जाता है. क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती है, ये आग को बुझा देती है. इसलिए बेकिंग सोडा का यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस सिलेंडर के अंदर प्रोड्यूस की जाती है एंड इट इज़ यूज टू एक्सटिंग्विश द फायर. नेक्स्ट इज द ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. So common name is the bleaching powder. Chemical name is the calcium oxychloride and chemical formula is the calcium CaOCl2. Next is the preparation of calcium oxychloride or bleaching powder. On large scale, bleaching powder can be manufactured by Hans-Clever method. एक Hans-Clever method है जिसके ज़रिए इसको बनाया जाता है. इस मेथड में स्लैग लाइम क्लोरीन गैस को पास किया जाता है स्लैग लाइम के मिक्सचर के थ्रू. तो यहाँ इस केमिकल रिएक्शन में आप देखेंगे कि ये स्लैग लाइम है, इसमें क्लोरीन गैस ऐड की जा रही है और जिसकी वजह से यहाँ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर बन रहा है. हियर वन नोट इज गिवन. देयर इज एन इम्पोर्टेंट नोट. एक्चुअली जो ब्लीचिंग पाउडर है इट इज़ यूज टू डीकलराइज द डीकलराइजेशन. किसी भी चीज़ के कलर को रिमूव करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं. यहाँ पर जैसे ही ब्लीचिंग पाउडर बनता है इसको
as soon as the bleaching powder is prepared, it should be packed in airtight container, otherwise chlorine will be released and bleaching action will be reduced. तो इस नोट में ये दिया हुआ है कि जैसे ही ब्लीचिंग पाउडर बन के तैयार होता है, इसको फ़ौरन एयर टाइट कंटेनर में रख दिया जाता है, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है, इसमें से क्लोरीन निकल जाती है, क्लोरीन गैस इसमें से निकल जाती है, और जो इसका ब्लीचिंग एक्शन है यानी कलर को रिमूव करने की जो प्रॉपर्टी है वो भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि कलर को रिमूव करने की प्रॉपर्टी एक्चुअली क्लोरीन की वजह से ही होती है। तो इसको जैसे ही ये इसका फॉर्मेशन होता है, इसका प्रोडक्शन होता है, इसको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख दिया जाता है। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इट इज़ येलोइश वाइट पाउडर हैविंग स्मेल ऑफ क्लोरीन, क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन प्रेजेंट है, इसलिए क्लोरीन की स्मेल इस पाउडर में से आती है। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, या पानी में आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है, एंड इट्स सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज इन हॉट वाटर, और अगर हॉट वाटर में इसको डिज़ोल्व कर रहे हैं तो ये बहुत ही ईजिली डिज़ोल्व हो जाता है। ऑन एक्सपोजर टू एयर इट लॉसेज क्लोरीन ड्यू टू रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हमने डिस्कस किया था कि जैसे ही क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है, इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर देते हैं, क्योंकि अगर ये ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आएगा तो इसमें से क्लोरीन गैस रिमूव हो जाएगी, और इस ब्लीचिंग पाउडर की जो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है, कलर को रिमूव करने की प्रॉपर्टी है, ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कांटेक्ट में आते ही क्लोरीन गैस इसमें से निकल जाती है। नेक्स्ट इज द यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग ऑफ पेपर एंड कॉटन। पेपर इंडस्ट्री या जो कॉटन से कपड़े बनते हैं, कॉटन की जहाँ प्रोसेसिंग होती है, क्योंकि इसका कलर थोड़ा सा येलोइश होता है, तो ये येलोइश कलर को रिमूव करने के लिए इस ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ वेरियस इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्मेशन में इसको यूज किया जाता है। ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प एंड लिनेन। वुड पल्प और लिनेन से भी जो एक ऑड कलर है, एक जो येलोइश कलर है, उसको हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इट इज़ यूज एज स्टेरिलाइजेशन and disinfection of the drinking water and manufacturing of the insecticides and weedicides. Next is the plaster of Paris. Common name is the plaster of Paris. Chemical name is the calcium sulfate hemihydrate, and chemical formula is CaSO4.H2O. यहाँ केमिकल नेम में आप देखेंगे एक वर्ड दिया हुआ है हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर, और हेमी का मतलब होता है हाफ, यानी यहाँ कैल्शियम सल्फेट से हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर अटैच, इस जगह पर हाफ होना चाहिए। इसका फॉर्मूला एक्चुअली CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो इसको हम हेमी हाइड्रेट कहते हैं। ये कैल्शियम सल्फेट हो गया, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मीन्स हेमी हाइड्रेट। नेक्स्ट इज द प्रिपरेशन। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय कंट्रोल्ड हीटिंग of gypsum stone. Here in this reaction you can see that when gypsum is heated in a controlled way, controlled way में heating इसलिए की जाती है क्योंकि ये gypsum है, gypsum में दो वाटर के मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं। अगर इसको हम अनकंट्रोल हीटिंग करें तो हो सकता है कि इसमें से दोनों वाटर के मॉलिक्यूल इवेपरेट हो जाएं या इससे सेपरेट हो जाएं। अगर ऐसा होगा तो हमें कैल्शियम सल्फेट मिलेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं मिलेगा। जबकि कंट्रोल हीटिंग में हमें ये किया जाता है कि कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ वाटर के मॉलिक्यूल अटैच करने ज़रूरी होते हैं, और 1.5 मॉलिक्यूल इससे रिमूव कर दिया जाता है। तो कैल्शियम जिप्सम को कंट्रोल हीटिंग करने पर 1.5 मॉलिक्यूल वाटर का रिमूव कर दिया जाता है, जबकि हाफ मॉलिक्यूल कैल्शियम सल्फेट से अटैच रहता है, और इसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी क्योंकि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके हार्ड हो जाता है, इसलिए जैसे ही इसका प्रोडक्शन होता है इसको भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख दिया जाता है, क्योंकि ये भी अगर एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाएगा तो ये बिल्कुल हार्ड सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाएगा,
और इसको दोबारा से रीमोल्ड नहीं किया जा सकता है। एक बार अगर क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में होता है, अगर ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने के बाद हार्ड हो जाता है, और अगर ये एक बार हार्ड हो गया तो इसको वापस से फिर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको बनते ही एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लिया जाता है। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। फर्स्ट, इट इज़ ऑफ वाइट, थोड़ा सा येलोइश कलर का होता है। ऑफ वाइट एमॉर्फस पाउडर, सोपी टू टच, अगर इसको हम टच करें तो थोड़ा सा स्लिपरी होता है, सोपी टच इसमें पाया जाता है। ऑन हीटिंग इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड मास, अगर हम इसको हीट कर दें, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हीट कर दें तो ये सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज़ स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, इट मीन्स दैट थोड़ा सा ये आसानी से वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। बाय एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड इट सेटल्स इनटू हार्ड मास। होता क्या है, जब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको वाटर के साथ जब मिक्स किया जाता है तो ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, एक हार्ड मास बनाता है। तो जैसे ही हम ये वाइट पाउडर की फॉर्म में होता है, इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये गीला रहेगा, पेस्ट की फॉर्म में आ जाता है। लेकिन इस पेस्ट को किसी एक पर्टिकुलर शेप में डालने के बाद जब इसको सुखाया जाता है तो ये बिल्कुल हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, और ये वापस से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज़ यूज इन सेटिंग ऑफ द फ्रैक्चर्ड बोन, जब भी हमारी हड्डी टूट जाती है तो हम कहते हैं कि डॉक्टर ने हमें प्लास्टर चढ़ाया या लगाया है, तो वहाँ पर यही होता है, कुछ बैंडेज होती है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का पाउडर जिसके ऊपर चिपका होता है, इसको पानी में डुबाकर हम हाथ या पैर या जो भी बोन फ्रैक्चर हुई है उसके चारों तरफ इसको लपेट दिया जाता है। थोड़ी देर में ये जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये हार्ड हो जाता है और हमारे बोन को सही जगह पर फिक्स करके रखता है। इट इज़ यूज इन मेकिंग ऑफ dustless chocolate. It is used in making of dustless chalk. It is used in air tight packing. एयर टाइट पैकेजिंग करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इट इज़ यूज इन कास्टिंग ऑफ स्टैचूज, जो स्टैचूज या मूर्तियाँ बनाते हैं उसका जो कास्ट होता है, जो सांचा होता है, उसको इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया जाता है। इट इज़ यूज इन डेकोरेशन ऑफ सीलिंग्स एंड वॉल्स, अक्सर हम घरों में सुनते हैं कि हमारे घर में पीओपी का काम चल रहा है, तो पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करके हम अपनी छतों और दीवारों पे कुछ डिज़ाइंस बनाते हैं, यानी डेकोरेशन के काम भी ये आता है। इट इज़ यूज इन डेंटल डिजाइनिंग, डेंटिस्ट टूथ डिज़ाइन करने के लिए इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है, ये एज ए मोल्ड यूज़ किया जाता है और डिफरेंट टाइप के टीथ बनाए जा सकते हैं।